Hello everyone, this is me, Professor Harshad. I welcome you all to the Vidyaarjan Science Academy, Narayanpet, Pune. Today we are going to learn and understand the very important and the crucial aspect from the point of view of your exam, because eventually our motto is to solve exam questions, and eventually you have to secure and acquire handsome marks in the exam, right? Yeah. So I would say syllabus and the question paper pattern, these are basically a building blocks of your examination, right? Rather, I would say these are the tickets to your journey towards examination, right? So you take any example or any exams as per se, you have to have these two tickets with you. First, your syllabus, and second, question papers or a question papers pattern, right? And I think प्रायर टू एवरीथिंग, बाकी सब कुछ पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है और क्या देखना है, it when it's come to the entire edition of this recorded video lecture and recorded video series, कि आपको पहले तो ये वीडियो देखना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है और मेरा सिलेबस कौन सा है, राइट? सो देन एंड देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस और द अप्रोच ऑफ प्रेपरेशन का अप्रोच कैसा होना चाहिए, वो हम सिर्फ एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद ही समझ पाएंगे, राइट? सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स अंडरस्टैंड द इवैल्यूएशन एंड द क्वेश्चन पेपर पैटर्न, राइट? यस. So here we go. Yes. So you have total 100 marks. That 100 marks is divided between your board examination, that is theory exam, and 20 marks is for your internal evaluations, that is held at school level or a college level, right? So 80 marks का एग्जाम आपका होने वाला है और 20 marks का 80 marks का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो बोर्ड एग्जाम रहेगा, और 20 मार्क्स जो आपका होने वाला है वो आपका कॉलेज या फिर स्कूल लेवल पे एज एन ओरल एग्जामिनेशन होगा, राइट? सो वो एग्जामिनेशन किस प्रकार से आपको लिया जाता है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. यस. सो दिस कंप्राइजेस ऑफ 3 hours, 3 घंटे का पेपर रहता है कुल मिला के. As you know all that we have 4 sections in our syllabus. The very first section is a prose section consisting of 8 prose, right? Yes. Then second section comprises of poetry section, that again consisting of 8 poems, right? So section 1 8 prose, section 2 8 poems, right? And then section 3rd we have writing skills, right? Under which we have even 6 to around 4-5 modules, right? Section 3rd, right? And then in section 4, that is novel and the history of novel as a genre, right? So we have 4 sections altogether, and these 4 sections have have altogether different marking scheme. But all in all, if you consider the weightage, the highest weightage goes for प्रोज सेक्शन. प्रोज सेक्शन में ज़्यादातर वेटेज दिया गया है, और ऐसा नहीं कि इसके ऊपर हमें ज़्यादातर हाईलाइट या फिर उसको ही ज़्यादातर हमें पढ़ना है. कंसिडरिंग योर प्रोज सेक्शन, यस, बट आई वुड रादर से go for poetry reading and go for poetry studying, right? I'll tell you in a short while कि आपको पोएट्री को क्यों पढ़ना चाहिए, right? Yes. So here रीडिंग कॉम्प्रेंशन, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, दैट बेस्ड ऑन दैट देयर विल बी अ ग्रामर, देन अ समरी एनालिसिस एंड द माइंड मैपिंग सिस्टम, राइट? सो ये 4 कंपोनेंट्स आपको सीन और अनसीन पैसेज में पूछे जाएंगे. अब सीन पैसेज क्या होता है वो देख लेते हैं, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1 A and B. So under which question number 1 you will be asked a scene passage which comprises of around 300 word.
इट मीन्स लाइक 7 to 10 लाइन का आपको एक पैसेज पूछा जाएगा। वो किस में होगा? सीन पैसेज, मतलब जो बुक्स में आपके जो 8 प्रोज है, उस 8 प्रोजेस में से ही आपको ये सीन पैसेज दिया जाएगा। उसका लेंथ होगा 7 to 8 लाइन मैक्स टू मैक्स, राइट। और वो आपके किताब में जो जितने सारे प्रोज सेक्शन है, उस प्रोज सेक्शन में से ही पूछा जाएगा, राइट। यस, सो this is what, and this total, this will be of like 8 marks। 8 marks के क्वेश्चन आपको प्रोज सेक्शन पे पूछे जाएंगे। बेस्ड ऑन दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, when it's come to B1 and B2, these unit comprise of grammar section। इसमें 3 मार्क्स के लिए डू एज डायरेक्टेड पूछा जाएगा। इसमें ज़्यादातर होगा कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस, नो सुनर, हार्डली हैड, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे आपके उसके ऊपर। एंड 1 मार्क्स यूनिफॉर्मली, ये हर एक आज तक के ऐसा देखा गया है कि 1 मार्क्स के लिए आपको एरर डिटेक्शन पूछा जाता है। एरर डिटेक्शन, मान लो कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक है, राइट, और उसमें ऊपर यू नो व्हेन इज कम टू लाइक सिंगुलर सब्जेक्ट, लेट्स से ही, शी and eat, after that we use singular verb, right, singular verbs, let's say like I walks and not walk merely, right। so there will be a problem and error in given sentences। वो error detect करके आपको उसको rewrite करना होता है करेक्ट फॉर्मेट में, राइट। सो उसके बोलते हैं एरर डिटेक्शन और स्पॉट द एरर। इन कॉमन पार्लेंस, नॉर्मली हम कम्युनिकेशन में बोलते हैं इन कॉमन पार्लेंस, स्पॉट द एरर, राइट। सो इस तरह से आपको एक मार्क्स के लिए वो पूछा जाएगा। या इन क्वेश्चन नंबर 2 ए, हियर विल बी एन अनसीन पैसेज। अब इसका मतलब क्या है भाई? अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज इज नथिंग बट द पैसेज दैट इज बीइंग आस्क्ड आउटसाइड योर सिलेबस। सो एक कोई तो भी प्रोज लेंगे जो आउटसाइड ये 8 प्रोज ना होते हुए इसके बाहर का कोई पैसेज आपको इस सेक्शन में पूछा जाएगा। उसका भी वेटेज उससे ज़्यादा होगा, बट कंसिडरिंग द फैक्ट लाइक यू हैव ग्रेटर स्कोप हेयर इन एक्विजिशन ऑफ मार्क्स। मार्क्स यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू नो टिक्स एंड टेक्निक ऑफ लाइक समरी राइटिंग और अ माइंड मैपिंग, देन यू आर गुड टू गो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ तक आपको ग्रामर सेपरेटली पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आपको यू नो स्पॉट द एरर में 1 मार्क्स आपका इजीली चला जाता है। अगर नहीं हुआ है, सेंटेंस दिया है आपको, उसको आप एरर स्पॉट नहीं कर पा रहे, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, देन लाइक यू आर गोइंग टू लूज योर 1 मार्क। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में बहुत सारे चीज़ें, मतलब आपको यहाँ पे स्कोरिंग एरियाज है ना। हालांकि अनसीन पैसेजेस ज़रूर है, लेकिन स्कोरिंग एरियाज है ये, है ना। सो ये क्वेश्चन नंबर ए में अनसीन पैसेजेस उसी लेंथ में पूछा जाएगा, मान लो 7 to 10 लाइन में। यस, बेस्ड ऑन दैट देयर विल बी अ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन, उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या है, फॉर 3 मार्क्स, यस, ये आपका 12 मार्क्स के लिए हो गए। यस, फॉर 3 मार्क्स यू हैव टू राइट अ समरी। अब समरी कैसे लिखते हैं वो हमने एक दूसरे लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मैटर, द यू नो लाइक द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। सो एक बार वो वीडियो देख लेना। यस, सो समरी राइटिंग में, समरी राइटिंग दैट यू हैव टू समराइज द गिवन पैसेज इन योर ओन वर्ड विदाउट डाइल्यूटिंग द एसेंस ऑफ इट। आपको कैसे लिखना है कि 10 लाइन वाला एसे या पैराग्राफ को अपने शब्दों में यू हैव टू मेक इट ब्रीफ, कंसाइज, राइट, एंड इन अ शॉर्ट वे, राइट। एंड उसको आपको इन द एंड टाइटल भी देना होता है। सो टाइटल के लिए ये हाफ मार्क्स हो सकता है, हाफ से 1 मार्क्स हो सकता है टाइटल के लिए। इफ यू प्रोवाइड एन इफेक्टिव एंड अ कैची एंड अ वेरी रेलेवेंट टाइटल, सो आपको 1 मार्क्स उधर ही मिल जाएगा, राइट। सो इसका मतलब ये नहीं कि समरी राइटिंग करना मतलब वहाँ से एक सेंटेंस उठाना, दूसरा शॉर्ट कर देना, तीसरे को
बहुत ही कंसाइज फॉर्म में लिखना नहीं, यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड विदाउट डाइल्यूटिंग द एसेंस ऑफ इट। उसका जो क्रक्स है, उसका जो मतलब है, वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, राइट? वो हमने पढ़ा है, समरी राइटिंग का वीडियो आप प्लीज देख लेना। देन सेकेंड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन द सेम पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ आपको 7-10 लाइन का दिया है, उसी पैराग्राफ में से आपको माइंड मैपिंग करना है, बस सेम पैराग्राफ। और वो इससे भी इजी अनसीन पैसेज होता है। अनसीन पैसेज सीन पैसेज से कई गुना, आई वुड से, इज इजियर देन द सीन पैसेज, राइट? सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू सर्टनली नो नीड टू कैरी दैट एंग्जाइटी और टेंशन विथ यू कि अनसीन पैसेज में होगा ही क्या, है ना? सो अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे से सीन पैसेज से भी अच्छे किया जा सकता है। इसमें आपको जो 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू राइट समरी बेस्ड ऑन द सेम पैसेज, एंड यू हैव टू राइट अ माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग भी हमने देख लिया है फॉर 3 मार्क्स। सो these are the two questions. One is on seen passage and other is on unseen passage. Yes. So as we know that we have 8 prescribed poetry. 18 पोएट्री दी है, उसमें से आपको I mean it's the very easiest section to solve, I would say. It's easier than the previous one, right? So इसमें क्यों easiest बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इसमें दोनों के दोनों ही पोइम्स आपको किताब में से ही पूछे जाएंगे, किताब में से ही पूछे जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट यू हैव टू ले मच एम्फोसिस ऑन स्टडिंग पोएट्री दैन प्रोज। ऐसा नहीं कि लाइक पोएट्री करना है, प्रोज का कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्रोज तो एक ही आ रहा है, उसमें से ही एक ही एब्स्ट्रैक्ट या फिर एक ही पैराग्राफ को हमें दिया जाएगा, तो करना ही क्या है उसमें, है ना? नो, दैट्स नॉट द केस। वो तो उधर भी हो जाएगा, हाँ हो सकता है, आई वुड से, बट considering the totality of marks or the total number of marks, I would say rather you have to focus much on a poetry section than on the prose one, right? इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि दोनों ही पोइट्री जो है हमें प्रिस्क्राइब सिलेबस से ही आ रही है, किताब में से ही आ रही है, राइट? सो यस, एक्टिविटी बेस्ड ऑन द टेक्सचुअल सेक्शन, उसमें आपको एक्टिविटीज पूछे जाएंगे, लाइक व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच, the meaning of the underlying statement, or let's say the literary devices used in the present section, and write your own thought on the given line. इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे. So literary device, figure of speech, or the meaning of the line, or maybe the meaning of the sentence, right? or your personal responses, right? yes, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस 10 मार्क्स में पूछे जाएंगे. And the second one, question number 3B is the again easiest one based on the scene poetry. इसमें भी आपको किताब से ही पोएट्री दी जाएंगी. उसमें से आपको क्या लिखना है? क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. पोएम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन. मैं चाहता हूँ कि आप 8वां पोएम का एक अपना कंसाइज फॉर्मेट में, जो कंसाइज फॉर्मेट में उसमें क्या है, इज वेरी इजी, लाइक नेम ऑफ ऑथर, नेम ऑफ पोएम्स, राइट, एंड देन name of poet, second, then is basically the body part of it, right? Then the third one is value, या फिर the final outcome or your understanding or the crux of it, right? yes. so ये तीनों पॉइंट आप अपने जो पूछे जाते हैं वो हर एक पोएम का आप करके ही रखो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे पूछ ले, वहाँ पे भी पूछ ले, है ना? सो कंसिडरिंग दिस पार्ट, क्रिटिकल अप्रिशिएशन, उसमें 4 पॉइंट आते हैं. सो ये 3 पॉइंट भी अगर आपने किए बहुत अच्छे से, इट शुड बी इन लाइक 7 to 8 लाइन, मैक्स टू मैक्स 7 to 8 लाइन, एंड यू विल गेट 4 मार्क्स, राइट? सो ये दूसरा सेक्शन हो गया. सेक्शन नंबर 2 में पोइट्री आता है, जो दोनों ही पोइट्री हमारी किताब से ही आएगी. सो कंसिडरिंग दैट एस्पेक्ट कि आपको ज़्यादातर ध्यान पोइट्री में देना है, राइट? यस. नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड सेक्शन ऑफ इट, which comprises of again 16 marks, and I would say this is again a easiest one to solve. And here in this you have options to choose from the given section.
इसमें ये मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक को इतना स्पेसिफिक तरह से करके जाओ आप कि एग्जाम में ऐसे ही फॉर्मेट में पूछने वाले हैं. लेट्स dwell into it. Question number 4. Herein you will be given a written activities based on different components. हर एक component like blog writing है, mind mapping है, अलग virtual drafting message है और email writing है ना. इसमें से आपको आपके चॉइस में जो आपको आता है you have to write that only, right? In first one, question number 4A, you are supposed to write either, मैं either बोल रहा हूँ, either virtual message और statement of purpose और group discussion. इन तीनों में से आपको सिर्फ एक ही सॉल्व करना है and which carries 4 marks. 4 marks आपको उसके मिलने वाले हैं, right? So point is guys, drafting virtual message rather than the statement of purpose is the easiest one. So मैं चाहता हूँ कि आप एक वर्चुअल मैसेज का फॉर्मेट जो मैंने आपको पढ़ाया भी है, I would say like go for the specific format with greeting, with the name of person and the questions, right? And the addressal of the redressal and the address of the question. मान लो कोई आपको आपके घर में पार्सल देने के लिए आता है बट आप घर पे अवेलेबल नहीं होते हैं और पार्सल आपको ही देना होता है एंड दैट द डिलीवरी बॉय लीव्स दैट मैसेज टू योर सन, आपके सन के पास छोड़ देता है, लाइक योर सन ट्राइज टू डायरेक्ट दैट मैसेज टू यू इन हिज ओन वर्ड. सो उसको कैसे वर्चुअली आप ड्राफ्ट करोगे, है ना. सो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं. सो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आई वुड से, सो लर्न दिस टेक्निक्स and like you're good to go, because statement of purpose definitely it's a challenging to solve. You need to add like your personal details, your academic details and your academic credentials and so on and so forth, right? So ये थोड़ा tricky है. I won't suggest like solving this. Instead I would ask you to solve either virtual message or you have been like doing it since your 10th standard or 9th standard group discussion. Here in this, like there will be 2 participants and 1 moderator, right? 2 participants and 1 moderator. So this is how you can like develop the thought. The question will be given to you, topic will be provided to you, and based on that you simply need to like let's say Ganesh and Ramesh, and one will be a moderator, let's say Archana ma'am, right? So this is how you can frame even that. Herein you will have to at least contribute 5 dialogue from each end. So Ganesh भी 5 dialogue बोलेगा, सुरेश भी 5 dialogue बोलेगा और ओपनिंग करेंगे मॉडरेटर और क्लोजिंग और द कंक्लूडिंग रिमार्क भी जो होता है वो भी मॉडरेटर. सो टोटल 12 डायलॉग शुड बी देयर. कितने? 12 डायलॉग होने चाहिए. 5 फ्रॉम ईच एंड एंड 2 आर फ्रॉम मॉडरेटर साइड. ओपनिंग रिमार्क एंड अ क्लोजिंग रिमार्क. ये किसका होना चाहिए? मॉडरेटर का होना चाहिए. ठीक है. यस, ये भी आप कर सकते हैं. ग्रुप डिस्कशन अगेन इज द इजिएस्ट वन, राइट. सेकेंड, question number 4B. Here in this section, either email writing, report writing or an interview. Yes, I would say report writing is bit creative and complex one. So my question is like to either go for email or an interview, right? Email writing, you need to understand the bone of contention or the topic of or the matter of ईमेल का मैटर क्या है, क्या मसला है, वो आपको समझना पड़ेगा. उस हिसाब से आपको ईमेल को कंपोज करना पड़ेगा, राइट. बट हियर इन दिस इंटरव्यू सेक्शन यू विल बी गिवन अ सेट ऑफ क्वेश्चंस इवन, राइट. सो इट्स अगेन easiest way to solve this section. Yes, interview wala. So I want you like skip report writing, focus on email or interview. Here in email, like what is, there is nothing like, so here is let's say receiver, then sender, right, and then subject line. So subject line is the most important component of the email writing. email writing का सबसे महत्वपूर्ण component कौन सा है? वो है subject line. So receiver, sender
subject line and start your email from here, like saying dear or a respected sir or a ma'am, and then state line in 3 sentences, 3 to 5. It is just not to be in a paragraph format. Email का paragraph नहीं बनाते हैं, right? And in the end close your saying regards or a warm regards, your name and designation. That's it. Your name and designation is the easiest and the simplest way, right? Yes. Then question number 4, see in writing section. Yes, here I would suggest you to go for comparing का solve करो वहाँ पे, and like prepare a format with you, right? The let's say the arrival of the guest speaker, the arrival of the guest, उसके लिए क्या 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 जाता है, greeting कैसे करते हैं, when you there stand behind the podium or stand there on the desk पे होके आप greeting कैसा करेंगे, arrival of the guest उनका welcome कैसे करेंगे, then how you are going to felicitate, right, the guest speaker on the desk or maybe the other dignitaries on the desk, उनको कैसे आप felicitate करोगे, then after that how you are going to call upon the stage to maybe a speaker, maybe a participant or maybe a performer, उनको कैसे आप address करोगे. All things you need to like prepare a script of it. मैं चाहता हूँ कि आप एक इसका script ही बना लो, because expansion of ideas again a tricky part, I would say, though you will be given a clues, but based on that probably you are going to get, lose marks into it. Then speech writing is again a creative and a logically taxing task, right? So my point is go for is go exercise. So as I told you, like component greeting, arrival of यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं. So here is the greeting, then the arrival of guests, then the introduction of the guest, then the speeches of the guest, right, and then maybe a performer or speaker, and in the end propose a vote of thanks. Like I would like to conclude this present program, I would like to invite Mrs. Prabha Joshi to deliver a vote of thanks or to propose a vote of thanks, right? So हो गया, आपका काम उधर ही बन गया. So इससे आपको vote of thanks, that's it. So now I call upon a stage Mrs. Prabha Joshi to propose a vote of thanks. हो गया, आपका काम बन गया उधर. So इसमें क्या है, इसमें 2 डायलॉग, इसमें 3 डायलॉग, इसमें 3 डायलॉग, इसमें 3 डायलॉग, वो तो बस रटाई स्क्रिप्ट आपको वहाँ पे रटनी है बस. Yes, this is the easiest way to go for comparing, I would say, right? Yes. Then here in this section I would suggest you to go for review writing. Question number 4D, go for review writing, because is the easiest one. Blog again, it's a creative and logically taxing thing. Let me tell you, it's require much research and other necessary expansion of ideas. So do not go for blog, I would say go for review, maybe like the book review, a film review, or anything that is, right? Yes. So an article review, you simply need to know the components of it, like there are 6-7 components of review. Either that is a book, so title of the book, the author of the book, and then the component of the book, and the message of the book, the writing of the book, overall impressions, conclusion, and so on and so forth, right? So review का है कैसे है ना, आपके पास वो लिखने के लिए ये है पॉइंट्स है. सो पॉइंट जब होते हैं तो आप बहुत अच्छा लिख पाते हैं, राइट? So considering that aspect, I want you to lay emphasis on review, and considering all your set A, B, C, D, कौन से भी सेट हो, सभी सेट में ऐसे ही आपको ऑप्शन दिए जाएंगे. कंफ्यूज नहीं होना है, एक क्वेश्चन भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ये भी ध्यान में रखो आप, एक क्वेश्चन भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बनाना है,
राइट। नहीं तो मुझे तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज भी आता है, स्टेटमेंट पर्पस भी आता है और ग्रुप डिस्कशन भी आता है, तीनों के तीनों लिख बैठे थे। ये तो आपको तो उसमें 4 ही मार्क्स मिलने हैं। सॉल्व तो आपने 12 मार्क्स का किया है, लेकिन मार्क्स तो आपको 4 ही मिलने हैं। सो जो आपको जैसे अच्छे से आता है और जो आप करके गए हो, आई वॉन्ट यू टू लाइक either that is virtual message is the easiest way, or go for group discussion in first one, right? And in second one I would say go for email writing and the second interview. Then comparing, or I would say like comparing, only go for comparing. You have a point to write. And here in this section, review. So review, you have again a pointers to write your answer, and this way like the moderator and the evaluator will assess your paper and copy of your paper very freely and easily. Point देखेंगे उनको, अरे ये सारे point है, and this is how like you will get an extra mark, right? So here in this section, like what he is saying, then A, B, C, D, in all these sections the options will be provided in e single set. सब कौन सा भी सेट आ जाए आपको, सभी सेट में आपको इन चारों इसमें ये 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये मत गलती कभी मत करना, डोंट कमिट दिस ब्लंडर एंड डोंट कमिट दिस मिस्टेक राइटिंग क्वेश्चन नंबर ए, ड्राफ्टिंग मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर ए में, क्वेश्चन नंबर 4 ए में तीनों के तीनों सॉल्व करने मत बैठना, उसमें से एक ही सॉल्व करना है। बी में रिपोर्ट, ईमेल एंड इंटरव्यू, इसमें से सिर्फ एक ही सॉल्व करना है, एक को ही सॉल्व करना है कंपल्सरीली। इवन इफ यू लाइक कमिट मिस्टेक देयर, फॉरगेट इट, हुआ है मिस्टेक, होने जाने दो। लास्ट में अगर टाइम बचता है देन एंड देन डू ओनली, अदरवाइज डू नॉट स्पेंड एंड वेस्ट योर टाइम राइटिंग more than or attempting more than one questions unnecessarily, right? Yes. Then the last one is literary genre, that is novel. Yes, so novel, I would say we have 4 novel and there's summary in total, right? First 4.1, in 4.1 we have a history of novel. So in history of novel you will be asked, let's say the question number 5A, which will be for 4 marks in total. This section comprises of 12 marks. Section आप कौन सा section आप skip नहीं कर सकते, you do not have any scope, neither you have any choice. If you skip any section from the given textbook, probably you're going to lose 12 marks or 14 marks, minimum 12 to 14 marks from that particular section. So आप कौन सा section skip मत करो। हालांकि जैसे मैंने बोला है कि इस तरह से आप अपने क्वेश्चन पेपर को डिजाइन कर सकते हो, राइट? यस। सो हियर इन दिस क्वेश्चन नंबर 5A में क्या हो सकता है, यू विल बी गिवन either MCQ type question or match the column or a chronological, like let's say the history of novel, right? So considering history of novel, when it's come to MCQ, they will be given like the novel that is full of adventures and sometimes misadventures and from one place to another, identify the type of novel. ये क्वेश्चन बन गया है। सो ये कौन सा नॉवल है, पिकारेक्स नॉवल है। यस। अभी दूसरा क्वेश्चन अभी एमसीक्यू टाइप में ऐसा बनता है कि लाइक हु रोट द पिकारेक्स नॉवल डॉन कीकोते, डॉन कीकोते किसने लिखी है, राइट? सो ये आपको पता होना चाहिए, राइट? मिगेल दी सर्वेंटिस ने लिखी है, मिगेल दी सर्वेंटिस ने लिखी है, ये भी आपको पता चले। चलो अब इसमें सेकंड आता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में ऐसे 2 कॉलम होते हैं, ए कॉलम बी कॉलम। यहाँ पे आपको नॉवल के नाम दिए जाएंगे, लेट्स से उरुनुकू, उरुनुकू। यहाँ पे नाम दिया जाएगा मान लो चार्ल्स डिकन। अब ये उरुनुकू चार्ल्स डिकन ने थोड़ी ना लिखी है ना? यहाँ पे दूसरा नाम, यहाँ पे दूसरा। यू सिंपली नीड टू मैच द कॉलम। सो इट इज बाय आफ्रा बेन। किसने लिखा है ये? PHN, आफ्रा बेन ने लिखा है। सो लाइक द A विल मैच विथ C, राइट? सो मैच द कॉलम। chronological order, let's say Don Quixote, Hard Time, then A Tale of Two Cities, and the fourth one say that Lord of the Flies. ये 4 नॉवल के नाम दे दिए। You are asked like arrange that in a proper chronological order. So chronological order में लगाना है।
इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. इजीएस्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट. सो हिस्ट्री ऑफ नॉवल से आपको क्या क्या करना है दोस्तों? आपको करना है लाइक नॉवल एंड अ टाइप ऑफ नॉवल, राइट? नॉवल एंड अ टाइप ऑफ नॉवल. सेकेंड करना है आपको नॉवल एंड इस ऑथर, राइट? थर्ड करना है आपको नॉवल एंड इस ईयर ऑफ पब्लिकेशन. ओके, इस ईयर ऑफ पब्लिकेशन, राइट? दैट्स इट. इन तीनों कर लिए आपने. और नॉवल है कितने? 10 एक नॉवल होंगे हिस्ट्री ऑफ नॉवल में. सो यू सिंपली नीड टू लाइक टाइप, ऑथर एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन. पिकारेक्स नॉवल है, बिल्डिंग्सट्रोमन नॉवल है, राइट? एडवेंचरस नॉवल है, एपिस्टलरी नॉवल है. कौन से प्रकार की नॉवल है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट? यस. देन activities on history of English novel. Herein you will be asked like what is Picarec's novel, what is Bildungsroman novel, state with the example, right? So this way you can gain 4 marks and this will be in 4.1. हमारे जो नॉवल का सेक्शन है उसमें 4.1 से नॉवल आएंगे. सेकेंड, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स. ये आपको कितने वर्ड में लिखना है? 50 words. It means like half page, not even like half pages. Max to max, if you know the answer, then you can drag till 1 page, extreme end of 1 page. But I don't suggest that go for extreme end of 1 page because you have 3 hours and the paper is bit lengthy. So जितना पूछा है उतना ही लिखो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उतने ही करो, right? Yes. Then in second one, you will be asked describe the setting of the novel. Then explain how Braithwaite cope up with the mischievous behavior of explain how Braithwaite cope up with the mischievous behavior of his student, है ना? So explain, compare the humanistic approach of Braithwaite towards his children and vice versa, right? Then contrast, name and discuss. This sort of question. So here in this all 3 novel and their summaries, मैं सजेस्ट करूंगा आपको इस पे ज़्यादा ध्यान दो. पहले में हिस्ट्री ऑफ नॉवल में टाइप कौन सा है, ऑथर क्या है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, समझ में आ गया? यस. अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको ज़्यादातर ध्यान देना है पहले तो कैरेक्टर एनालिसिस, कैरेक्टर्स एनालिसिस, कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर और नरेटर. कैरेक्टर स्केच ये लिख ही लेता हूं मैं. कैरेक्टर स्केच ऑफ नॉवल और नरेटर 100% पूछा जाएगा आपको. ये करना ही करना है आपको. सेकेंड, द सेकेंड वन इज लाइक थीम ऑफ द नॉवल, राइट? ये करना ही करना है आपको. यस. थर्ड, सेटिंग ऑफ द नॉवल, setting of the novel. And the most important, the fourth component will be the bone of contention or the basic crux, points, idea और underline theme of the novel, कि जिसके ऊपर पूरा का पूरा नॉवल बेस्ड है. मान लो ब्रेथवेट की ये है टू सर्व विथ लव, राइट? उसमें क्या है बोन ऑफ कंटेंशन? लाइक ही इज ट्राइंग टू फिक्स इनटू द सोसाइटी wherein he want to explore things on a humanitarian ground, right? So initially like student used to hate him, reproach him and reprimanded him for his identity as a black person. ये bone of contention है. But despite the fact Braithwaite tries to console, try to offer and try to treat his student fairly, uniformly and equally. ये सही है कि नहीं? So bone of contention क्या है? नॉवल का बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? नॉवल किस पे ऊपर बेस्ड है? उसका प्रेमिस क्या है ना? प्रेमिस मतलब फाउंडेशन, एक आइडिया, है ना? वो कौन से आइडियाज पे डेवलप है वो आपको करना है बस. शेरलॉक होम का हो या फिर ब्रेथवेट का हो, कौन सा भी हो, यू हैव टू नो the crux, the bone of contention and the premise of novel, कि उसका फाउंडेशन क्या है,
वो कहना क्या चाहती है नॉवल, बस वो पॉइंट कर लो एंड यू आर गुड टू गो विथ 16 टोटल 12 मार्क्स. सो सॉरी, यस, हो गया, राइट. सो दिस इज हाउ you have to prepare according to the exam pattern, right? In this as well section, question number C, again you will be asked this question, right? 15 words, plot, structure, theme, setting, बस compare, contrast, इन दोनों में से आपको 2-2 मार्क्स के लिए 50 वर्ड में उसका आंसर लिखना है. मैंने जो 5 पॉइंटर बताया आपको, वो लाइक कैरेक्टर स्केच, थीम, देन द प्रेमिस ऑफ द नॉवल एंड द सेटिंग ऑफ द नॉवल. इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है उसमें, राइट. यस, इन अ वे यू आर देयर टू स्टडी समरी ऑफ इट. एग्जाम के बाद नॉवल पढ़ने की कोशिश करना, मतलब है ना, पहले नहीं. यस, एंड द सेम इन 4 क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री ऑफ नॉवल पूछा जाएगा, दूसरे, तीसरे और चौथे इसमें ये जो 3 नॉवल की समरी आपको दी है उसमें पूछा जाएगा कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द नरेटर और कैरेक्टर स्केच ऑफ नरेटर, ठीक है. सेकंड आपको पूछा जाएगा सेटिंग ऑफ द नॉवल, थर्ड आपको पूछा जाएगा थीम्स ऑफ द नॉवल, एंड उसके बाद में आपको एक आधा इंसिडेंट पूछा जाएगा लाइक द प्रेमिस ऑफ द हाउ समवन हैज डेल्ट विद द प्रॉब्लम, लाइक. सो दिस विल बी you are good to go approach for the paper. I think based on that, if you watch this and if you study in this way, I am damn sure you are going to acquire at least 65 plus marks in your exam out of 80. 80 में तो 65% ये बहुत फर्स्ट क्लास मार्क्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं मार्क्स, फर्स्ट क्लास से भी ज़्यादा. लैंग्वेज में आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये मैथमेटिक्स का पेपर नहीं रहता है, लैंग्वेज में किसी को आउट ऑफ नहीं मिलते. बट इफ़ यू फॉलो दिस अप्रोच प्रॉब्ली विल गेट मे बी ए हैंडसम मार्क, राइट. यस, सो कंसिडरिंग लाइक दिस, सो फर्स्ट इज ऑफ लाइक 34, then 16, then 16 and then it again 16, right. So total 80. So 80 marks का पेपर है. And apart from that, I would suggest you, now we have seen the deconstructions of a paper pattern. पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है. I want you guys, neither I'm not in favor of any books or market guide or a digest. मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन नवनीत का ही अगर आपने एक सॉल्व क्वेश्चन पेपर लिया, एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जिसको सॉल्व किया है उन्होंने, सो ये एक बार देख लेना आप, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि पेपर सॉल्व कैसे किया जाता है, राइट. पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं. फाइन, यस, फाइन. एंड विद दिस we'll take a 2024 question paper. So yes, so with this we are going to solve 2024's board papers, right. So prior to that, you have to understand few things before we move ahead, that what exactly you need to do during the exam. So it is 2024's exam, right. You are supposed to write your seat number here, right, and supposed not to share with anyone else. Apart from that, under each sections you have to answer, you know, with the proper questionnaires and with the proper question numbers, right. So I would suggest you, I mean, like, this is my firm conviction, very firm conviction, that is, you should not miss question number, because when it's come to your 12th boards exam, there are 5 questions in total, but considering those 5 questions, under each sections or under each question, there are around 3 to 4 questions, sub questions, right. So you need to mind, you need to take into considerations, and you need to mind the fact that you have to, even though you are in hurry or like you are doing something speedily, right, you have to mind, if you spare time in the end, that's fine again, कि आपको
क्वेश्चन का नंबर बहुत अच्छे से लिखना है, पहली बात। दूसरी बात बोलूंगा मैं, दैट ट्राई एंड आंसर यूर पेपर इन सीक्वेंस, नॉट नेसेसरीली, आई एम राइट, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ द पॉइंट दैट सर जो हमें आते हैं वो पहले लिखने चाहिए, राइट, बट ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन है ही कौन से जो आपको 2 3 4 5 पैराग्राफ में ऐसे लिखना है, नहीं। सो यू सिंपली नीड टू राइट इन 1 लाइन और 2 लाइन और मैक्स टू मैक्स 1 पैराग्राफ, राइट, इतने तो पेपर है। तो उसमें आप सीक्वेंस को मत चेंज करो, दैट विल बी एन ईजिएस्ट वे टू मार्क योर इम्प्रेशन ऑन एन मॉडरेटर और इवेल्युएटर। सो वो अच्छे से आपको मार्क्स देते जाएगा, बिकॉज दैट वोंट बी एन हेडेक फॉर दैट पर्सन, राइट। सो सीक्वेंस ध्यान में रखना है। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग आई वुड से, लाइक considering these, you need to take into consideration the command and the prompt or command given by each single sentence, right? So यहाँ पे आपको अगर बोला है कि like you have to do the mind mapping, do not make the summary there, right? If you are asked like it's a, you know, from direct to indirect, do not change into question tag, or if it is let's say spot the error, do not rewrite the just answer, right? So इस सब में कौन सा खेल मेरे ख्याल से बड़ा है, that you have to understand the each single prompt given under each single question. हर एक क्वेश्चन में कौन सा प्रॉम्प्ट दिया है, कौन सा कमांड दिया है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, you need to cater the demand and you need to fulfill the need and a demand of that particular question, right? ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, चेंज द वाइज पूछ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, यू नीड टू सिंपली लाइक रीड समथिंग दैट इज गिवन देयर इन द पैरेंथेसिस, ब्रैकेट में क्या दिया है वो मुझे पहले पढ़ना है, देन ओनली आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। यस, बहुत बड़ी चीज नहीं है पेपर को सॉल्व करना, यू सिंपली नीड टू टेक लाइक द क्वेश्चन नंबर बराबर होने चाहिए, सीक्वेंस में हो, मैं चाहता हूँ कि आप सीक्वेंस में सॉल्व करें। और तीसरी बात, प्रॉम्प्ट, हर एक क्वेश्चन में प्रॉम्प्ट दिया गया है, हर एक क्वेश्चन में कमांड दी हुई है, उस कमांड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, देन ओनली लाइक यू आर गोइंग टू सॉल्व पेपर। नहीं तो पेपर तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ही पूरी नहीं हो रही है, व्हाट्स द यूज ऑफ सॉल्विंग दैट पेपर, राइट। सो माइंड दैट, ओके, दिस इज इट। देन the answer to be written in a complete form, right? Even if it is like the statement, do not like simply say like spot the error, he meets me, let's say he meets me yesterday, ठीक है, he meets me yesterday. So this should be when it's something that is referred with the टाइम रेफरेंस, टाइम रेफरेंस के साथ अगर कोई चीज़ बोली जाती है तो हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी नहीं, पास्ट परफेक्ट में नहीं, सिंपल पास्ट में लिखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज लाइक ही मेट मी, राइट, MET, मेट मी yesterday, राइट। सो ये मत करना है यहाँ पे मेट, दैट्स इट, नो, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड यू वोंट बी गिवन एनी मार्क्स फॉर इट। हर एक आंसर को आपको पूरे सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना है, सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना है, क्लियर? यस। सेकेंड थिंग, या दिस वेब डायग्राम, यस, डिजायरेबल व्हेन इज कम टू माइंड मैपिंग, राइट, ऑफ कोर्स, लाइक इज डिजायरेबल dialogue writing, that may be like you may write something with a different pen, right, or flow chart tables, that is acceptable, yeah, but these are not acceptable with regards to question number 1 and question number 2. जो क्वेश्चन नंबर 1 पे जो आने वाला है, सीन पैसेज पे जो आने वाला है, उसमें कुछ नहीं करते। फ्लो डायग्राम में आप कुछ तो डेकोरेटिव बना सकते हैं। जो माइंड मैपिंग का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1B में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1B अनसीन पैसेज में जो माइंड मैपिंग होता है ना, वहां पे आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वहां पे आप थोड़ा सा डेकोरेटिव कर सकते हैं, पेन वगैरह यूज कर सकते हैं, बट माइंड दैट डू नॉट यूज रेड और ग्रीन पेन, रेड एंड ग्रीन पेन, यूज ओनली ब्लैक एंड ब्लू पेन, ब्लैक एंड ब्लू, नॉट रेड एंड ग्रीन वन, ठीक है। हाँ, इफ देयर इज एन अंडरलाइन वांट टू डू,
do with the same pen. If it is a fill in the blank or answer, then do with the same pen. You know, black, you can write, you know, question number. I do write in this way. मैं जब भी पेपर सॉल्व करता हूँ तभी मैं जो हेडिंग होता है, क्वेश्चन नंबर होता है, वो हमेशा मैं ब्लैक पेन से देता हूँ और उसका जो आंसर होता है वो मैं ब्लू में लिखता हूँ. सो ब्लैक एंड ब्लूज आर टोटली एक्सेप्टेबल. सो आई वांट यू टू डू दैट. मान लो कि क्वेश्चन नंबर ऐसा है, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1, राइट, क्वेश्चन नंबर 1 बी है. सो क्वेश्चन नंबर 1 बी एंड देन आंसर. ठीक है, इतना होगा ब्लैक पेन से. अब उसमें मुझे पूछा है द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पिकारेक्स नॉवल. सो मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से ही लिखूंगा यहाँ पे भी, और वो भी ब्लॉक लेटर में. कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पिकारेक्स नॉवल एंड देन आई विल स्टार्ट माय आंसर इन ब्लू पेन. यस, इन ब्लू पेन से यहाँ पे शुरुआत करूंगा. बहुत अच्छे से इंप्रेशन होता है. मैं भी चाहता हूँ कि आप 2 पेन इस्तेमाल करें, बट वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए दोस्तों. वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए. अगर पॉइंट फॉर्मेट लिखना है, बुलेट फॉर्मेट में लिखना है, तो बुलेट और पॉइंट और क्वेश्चन नंबर के लिए कंपल्सरीली आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो बचे आंसर्स है उसके लिए आप ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट, यस. सो बाकी उधर कभी भी किधर भी आपको पेंसिल, रेड पेन, ग्रीन पेन, इसका इस्तेमाल नहीं करना है. यस, क्वेश्चन को कंप्लीट फॉर्मेट में लिखना है. ऑलराइट, यस. आई मीन अगेन लाइक वी आर टोल्ड मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ इट. सीक्वेंस मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो तब ज़रूरी बन जाता है अगर आपका पेपर अच्छा है और उसको और अच्छा बनाने के लिए सीक्वेंस, ताकि इवैल्यूएटर को आसानी हो जाए आपका पेपर चेक करने के लिए, कोई दिक्कत ना हो जाए, है ना. यस. अदर कलर पेंसिल, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड. ये कुछ नहीं लिखना है, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट, you know, this is a scene passage, right? This is what, like, it is taken from Pico Iyer's Why Do We Travel, right? So why do we travel से हमने ये पैसेज को लिया है. so ये अराउंड कितने लाइन का पैसेज है, जैसे मैंने बोला है कि 7 से 10 लाइन का पैराग्राफ आपको पूछा जाता है, एंड 7 से 10 लाइन में पैराग्राफ है. इसमें आपको क्या, पहले तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, और पहला क्वेश्चन अमूमन यही रहता है, questions like true or false. Why do they ask you just to comprehend the matter given in the paragraph? comprehend मतलब समझना, उसको पढ़ के समझना. so उसमें क्या दिया है वो मैटर को समझने के लिए हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, and you simply need to like underline the head word or a keyword, और वही हेड वर्ड और कीवर्ड को आपको इसमें पैराग्राफ में देखने हैं. पहली बात तो ये. सेकेंड इज लाइक there are certain set of question which may not have the direct reference or the direct line in the question. so फिर वैसे होता है क्या, कट पेस्ट का ही काम होता है. आपको कुछ समझना तो चाहिए, समझ के लिखने तो आना चाहिए. so this is where you need to understand and build your critical and a logical thinking. ये आप किससे बना सकते हो, ये लॉजिकल थिंकिंग किससे बना सकते हो, that you simply need to keep solving the given brainstorm exercise in your book. बुक में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्सरसाइजेस दिए हैं, उस एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट बुक और आफ्टर रीडिंग द प्रोज, पोएम और एनी सेक्शन फॉर दैट मैटर, यू नीड टू सॉल्व इट कंपल्सरली. देन यू कैन बिल्ड अप योर एनालिटिकल एंड अ क्रिटिकल थिंकिंग. क्योंकि पैसेज के बाद जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन दे दे या फिर उसका आंसर डायरेक्ट उसी लाइन में दे दे. नो, यू नीड टू डिकंस्ट्रक्ट दैट. वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, एंड एनालाइज करके आपको वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि यार व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से थ्रू दिस पर्टिकुलर लाइन. हाँ, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि जिसका आंसर एज इट इज शब्दों में दिया हुआ है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जिनका आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा. सो आपको क्या करना है उस केस में, जो पहला लाइन है और जो उसके बाद में आने वाला लाइन है उसको कनेक्ट करके
एक लॉजिकल फ्लो बना के आपको डिराइव करना पड़ेगा, यही ट्रिक है उसके, राइट? पहला वाला लाइन और उसके बाद में आने वाला लाइन, दैट यू हैव टू कनेक्ट इट or connect the dots in a such a way so that you can build a logical argument or the logical conclusion, then only you can like solve that particular answer. Yes, so this is a uniform pattern throughout the year. It has been like observed since 2020, 2020 से लेके आज तक यही पैटर्न रहा है. पहले सीन पैसेज में 4 मार्क्स के लिए आप 2 मार्क्स के लिए आपको ये ट्रू और फॉल्स पूछे जाते हैं, और 2 मार्क्स के लिए आपको इधर वोकैबुलरी पूछी जाती है, और दूसरा तो फिर मैच द कॉलम पूछे जाते हैं, राइट? सो यू नीड टू माइंड अगेन वन थिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स. I want you to read all those highlighted word in your prose and poetry as well. जो highlighted word है ना, या फिर glossary जो दिए है ना at the end of your prose and poetry, वो glossary को पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ताकि you can build that argument in your paper, पहली बात. और जब आप पैराग्राफ आपके सामने आ जाए तब आप उसका क्लू लगा के, क्योंकि ऑलरेडी आपने वोकैबुलरी पढ़ी हुई है, सो उससे भी आप मैटर को अच्छे से समझ सकते हैं. And third thing, there are questions wherein you will be asked synonyms and antonyms. So आपको पता होने चाहिए. So third thing, I would suggest you brainstorm. तो वो जो brainstorming exercise जो है वो तो आप करो ही करो, बस साथ ही साथ आपको जो vocabulary दी हुई है, right, or the glossary that is given at the end of every prose and every poems, that you have to read it, right, or rather mug up it. Okay, yes. So let's try and understand what the passage is trying to say. So here are 4 questions. Each question carries half marks रहेगा इसके लिए. So a traveler may sink in love with his travel memoir. So a traveler may sink in love with his travel memoir. So like, is this the true statement or false? You need to infer, guess and derive it from the given passage. So ये सही सेंटेंस है कि नहीं? So यहाँ पे ट्रैवल मेमोयर की बात हो रही है. Let's jump into the very word. ट्रैवल मेमोयर कहाँ पे आता है? Where is the travel memoir word? That's why I told you like पहले कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको उसको हाईलाइट करना है, और हाईलाइट करने के बाद आपको डायरेक्टली स्कीमिंग और स्कैनिंग तरीके से पूरा, या इज दिस इज व्हाट कैमस सेड से लेके अप्रिशिएट इट, यहाँ तक ऐसे पढ़ना नहीं है. पहले क्वेश्चन को देखना है, ठीक है? एंड देन लाइक जंप ऑन इट. हियर विल बी मेमोरी, आई वुड से, एंड प्लेइंग बैक इन मेमोरी over and over all the had experience, paging wheels through and photographs, reading and reading my diaries as an extract where it is given exactly. Let me like it is so it is reading my diaries as if to extract my mystery from them, right? So this is where you lies the answer. Is this the true that the traveler sink into का मतलब होता है fall into his memoir, travel memoir. ये सही बात है कि ट्रैवल अपने मेमोयर में खो गया है ट्रैवलिंग के बाद, ये सही बात है. ये स्टेटमेंट कहीं पे दिया गया नहीं है, कहीं पे दिया गया नहीं. Now you have to derive that statement from the given paragraph. So यहाँ पे यहाँ की बात हो रही है. Yes, the reading and the rereading of his diary, reading and rereading of his diary, that made him to fall into love of traveling. Simple सा है, right? Second, one gets inspected as he inspect the world around him. The one get inspected
as he, so the passage exactly told the same thing, like how you are going to get scrutinized. Inspect का मतलब होता है, यहाँ पे देखो मैंने इसीलिए बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो चैप्टर के बाद में जो ये आते हैं, वोकैबलरी है, ग्रॉसरी है, उसको पढ़ना पड़ेगा. इंस्पेक्ट का मतलब होता है स्क्रूटिनी. अब वहां पे इंस्पेक्ट दिया है, पैराग्राफ में स्क्रूटिनी दिया होगा. लेट्स अंडरस्टैंड दैट, when we go abroad, object of scrutiny. So we not only looked outside, but the people also look inside of our life, and this is where we scrutinize our own life, right? So here it is rightly mentioned and explicitly mentioned in the third paragraph of, go abroad is what we object of scrutiny. As much as people we scrutinize, and we are being consumed by the culture and consumed by as much as the road, right? So it is said that जितना हम लोगों को, once we get inspected as he inspected the world around him, जितना हम लोगों को स्क्रूटिनाइज करते हैं, उतना ही लोग भी हमें स्क्रूटिनाइज करते हैं. सो ये कहाँ पे दिया है ये स्टेटमेंट? मैंने बोला है जैसे कि इस लाइन में दिया है. डायरेक्ट तो नहीं है, आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा. इंस्पेक्ट का मतलब होता है स्क्रूटिनाइज. सो स्क्रूटिनाइज यहाँ पे आ गया तो डायरेक्टली यहाँ पे जंप करो. डायरीज मेमोयर की बात यहाँ पे हो गई तो यहाँ पे आकर जंप करो, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी शॉर्टकट ट्रिक्स टू अप्लाई. देन quest for something may end in more mystery. Is this the true statement? So these both statements are true. Yeah, this is again true, this is again true, and I would say this is again true. A quest for matlab something that you have or you have a desire for, right? A quest for something may end in more mystery. Why he is saying so? कि किसी चीज का पीछा करने से और भी हमें ज़्यादा मिस्ट्री में हम चले जाते हैं. Why he is saying so? Just because where is he is talking about mystery, so I have to find out mystery along with you as well. See, there is no direct question here, but the author rightfully said, I remember, the more you try to find out in a life, the more you get involved into the questions, right? This is so true when it's come to yes. Look at here, yeah. And that is why many of us travel not in search of answer, but a better question. I like many people tend to ask question of the places I visit, and really most of them ask the most searching question back to me, right? So here author is trying to say the more you ask questions, definitely you're going to get answer, but once you get answer, you're going to get more question as well. So it's a kind, traveling is a kind of mystery, right? So here you will get the answer of that questions. Yes, answer of that questions. Now the final one, staying in comfort at home gives one more happiness than traveling. So this is absolutely true on the face of it. प्राइमा फेसी ये गलत ही लगता है. ऑथर बोलता है कि हम ट्रैवल क्यों करते हैं और हमें ट्रैवल क्यों करना चाहिए. And author throughout the prose and throughout his first line to the last line he said like we have to move out of our comfort zone and travel around the world. ये तो पहले से ही बात कर रहा है, बट यहाँ पे बात हो रही है कि नहीं, ऑथर बोल रहे कि घर पे ही सुकून से रहना चाहिए, सोना चाहिए, खाना चाहिए, बाहर जाना नहीं चाहिए घूमने के लिए. सो वहाँ पे पैराग्राफ में ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, बट ऐसा है कि आपको पैराग्राफ में ये पता भी चल जाएगा दिस इज फॉल्स देन, राइट? सो आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 1A, right? And then answer, right? Write the statement in full sentence and say false. जो false अगर है तो, अगर true है तो true, right? Yes. This is how you have to solve it. Yeah. Then now match the pair. Column A, column B. Who is the narrator? Camus, Isharu, and a traveler. Narrator, what he is saying? In love with his memoir, right? Is this true? Narrator, if you understand, in love with the memoir. If he read the entire stanza, then
Yes. So narrator is basically more happy when he move on. Sorry, just a moment. Here the narrator is more happy when he move on. जब वो बाहर जाता है तब वो ज़्यादा खुश होता है. कैमस क्या बोलता है? Let's understand Camus. What Camus has to say here. Camus mean when he said what gives travel to is fear. यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना. So Camus said fear gives us value to travel. Camus. Then Isherwood. Let's try and understand what Isherwood has to say here. Yeah, Isherwood. Right here. Yeah, Isherwood once said, should be perhaps a little like a crime story. So traveling करना मतलब इस crime story को पढ़ने जैसा है या फिर crime को खोजने जैसा है, right? So look at here is a direct statement, guys. You simply need to like Isherwood says like it's just like a crime story. So narrator more happy when he move. Camus say it just gives fear to traveler, and traveler and ideal travel should be like be in love with his memoir. So इसका आंसर आपको उधर ही मिलेगा, right? Any doubt? So this is where you can answer. How you are going to attempt these? I ask you, that is where I ask you, like I am not in favor of Navneet Guide Digest or any market guide as such, right? लेकिन नवनीत में जो आपको एक पेपर सॉल्व करने के लिए दिया है ना, वो पेपर एक बार सॉल्व किया हुआ देख लो, ताकि आपको आइडिया आ जाए, एक परसेप्शन बिल्ड हो जाए कि ये क्वेश्चन मुझे इस तरह से सॉल्व करना है, राइट? यस. देन इसका रीजन देना है आपको. ये होगा क्वेश्चन नंबर A1. इसका B. वी आर ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्रूटिनी बिकॉज. व्हाई ही इज सेइंग सो? वी आर ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्रूटिनी. Why is saying so? He said, when we go abroad, that is where we object of a scrutiny as much as the people we scrutinize, and we are being consumed by the culture, and we consume as much as the road as when we being consumed by the culture. So here you can, if you do not reframe the questions, right, do not worry about it at all. Yes, आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता है, आपको अगर उसको अच्छे से फ्रेम नहीं करना आता है, so no worry about it. Yeah. But you must know that you simply need to write from here to here. If at all, if you fail to frame the given statement or a given sentences, अगर आपको नहीं करने आता है, no problem. आप क्या करो, वो जैसे कि तैसे उठाओ. ये scrutiny, ये when से नहीं, we go abroad to us. This is saying like when we expose the world, we are automatically get exposed by the world. This is where we enhance our personality, and this is where get maximum for our life as well. ये बात हो रही है वहाँ पे, scrutinize की बात हो रही है. So ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो, otherwise make the contents clear, guys. Right? Yes. Then traveling is an interesting teacher. Write your views in 3-4 sentences. ये छोड़ना ही नहीं है आपको. ये क्वेश्चन हालांकि पर्सनल बेस्ड क्वेश्चन है, 3 से 4 सेंटेंस है ही क्या, as I'm having a conversation with you, that's a kind of 3-4 words. हो गए 3-4 lines, तो ऐसे ही हो गए. So why do we, traveling is an interesting teacher. So why do you think that the traveling is an interesting teacher? You can even like take help of the given passage as well. Given passage का भी आप सहारा ले सकते हैं. कैसे? राइट फर्स्ट लाइन. अभी तो हमने देखा स्क्रूटिनाइज करने के लिए, खुद को स्क्रूटिनाइज करने के लिए, लाइक द travel really makes man to scrutinize himself in order to bring out the flaws in his life. हो गया पहला स्टेटमेंट. सेकेंड, we have to travel just because to gain and hone knowledge. Third, to get acquaintance with the multiple peoples, cultures and the cuisine in the world. हो गया. क्वेश्चन को लगता ही क्या है. So do not skip this question which are asked on your personal opinion. बहुत मायने रखता है guys. Yes. So हो गए आपके 8 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट. अब देखते हैं उसमें क्या है. अब ये डू एज डायरेक्टेड पूछा है, राइट? डू एज डायरेक्टेड आपको 3 मार्क्स के लिए लिखना है. फाइन. तीन क्वेश्चन है और एक है एरर स्पॉटिंग का.
right? So let's try and understand. I like to ask question of the places I visit. Choose the correct sentence from the above sentence from the following option and rewrite. So ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये दिया हुआ है ना, आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन ऑफ द प्लेसेस आई विजिट. जहाँ जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पर लोगों को मुझे प्रश्न पूछने में अच्छा लगता है. सो ये कौन सा स्टेटमेंट है? सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट परफेक्ट है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? ये कौन सा स्टेटमेंट है? कंसिडरिंग द वर्ब ऑफ इट, लाइक, आस्क एंड विजिट, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम किस में यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. सो दिस इज जस्ट अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? बस लिखना है आपको. क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 1A5 क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस. हो गया आपका, कुछ करने की जरूरत नहीं है. यस. सेकेंड क्वेश्चन. देन आई वुड कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क. इसमें क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग यूज टू फॉर द गिवन स्टेटमेंट एंड रीराइट. इसमें आपको क्या लिखना है? यूज टू. यूज टू लेके आपको स्टेटमेंट को कम करना है. सो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, he used to go for walk, they used to swim a lot during their childhood, शाहरुख खान used to smoke a lot during his college days. ये हो गया यूज टू के एग्जाम्पल. सो यूज टू यूज करके इस स्टेटमेंट में यूज टू को यूज करके आपको सेंटेंस को बनाना है. इट्स वेरी इजी. देन आई यूज टू ऐसे तो नहीं यूज कर सकते हम. आई हैव यूज टू ऐसे भी यूज नहीं कर सकते हम. इसको आई हैड यूज टू ऐसे भी यूज नहीं कर सकते. सिंपली यूज टू, जैसे मैंने 4-5 सेंटेंसेस बोले ऐसे ही आपको इस्तेमाल करना है. एंड सी इज द करेक्ट वन. आई यूज टू कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में मैं अपने अपार्टमेंट में आया करता था. ये पास्ट हैबिट को बताने के लिए. पास्ट हैबिट के लिए हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं. वुड, वुड का भी इस्तेमाल पास्ट हैबिट्स के लिए होता है और यूज टू का भी होता है, राइट? अब जब यूज टू इस्तेमाल करते हैं हम, तब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है. ठीक है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है. उसको अगर इसमें इंटरोगेटिव में करना है तो डीड इस्तेमाल करना है. लाइक डीड आई यूज टू. अब यहाँ पे यूज टू ये नहीं लगाना है, ऐसे नहीं. यूज टू ऐसे नहीं लगाना है क्योंकि डीड तो पहले लगाया ना मैं. सो डीड आई यूज टू स्मोक ड्यूरिंग माई कॉलेज डे, है ना? सो डीड आई यूज टू. अगर इसको अगर करना है आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू स्मोक. यहाँ पे सेकेंड फॉर्म किया हमने, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सिंपल पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब तो हमने पहले ले लिया है, राइट? और ये किसी के बगैर नहीं आता. यहाँ पे सिंपली आई कैन से लाइक आई वुड स्मोक ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज. सो वुड का भी इस्तेमाल पैरेलली यूज के साथ ही होता है, और उसके बाद कोई टू होता नहीं. यूज टू होता है लेकिन वुड नहीं होता है. सो आई कैन सिंपली से आई वुड स्मोक ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज. सो यहाँ पे वुड लगा के भी इसी सेंटेंस को आप कर सकते हैं, और हो सकता है आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाए. यस. देन फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन. मैंने देखो आपको बोला है कि वोकैबुलरी आपको करना बहुत जरूरी है. उसके सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, और एक्सप्रेशन ऑफ यूसेज आते हैं, और आपको अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक आस्किंग फॉर द पर्टिकुलर मीनिंग. पैसेज में जो मीनिंग दिया है ना वो आते हैं. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड रेमिनिसेंस. व्हाट इज रेमिनिसेंस? रेमिनिसेंस आर नथिंग बट मेमोरी गाइज. मेमोरीज, यादें जो आपने बिताई हुई होते हैं उसको बोलते हैं मेमोरीज. और एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग, something that gives you happiness, right? So it was exhilarations, happy, interesting, or exciting. Yes. इस तरह से आपको इसके आंसर करने हैं. Yes. और from the given passage, exhilaration का मतलब होता है ecstasy और